Hello everyone, I am Shomokanti Giri. Welcome to my channel. So in this video we will discuss about the preparation strategy regarding GPAT 2026. If you are a GPAT 2026 aspirant, then this is a very important video for you. Please see the video till the end. This is a brief introduction about myself. Before start, here is an important announcement. Okay. So GPAT Pathshala, a renowned coaching institute from West Bengal, they are providing you free GPAT and NIPER coachings for the students those who are from West Bengal and know Bengali language. Okay, so any poor but meritorious student who actually cannot afford the online coachings regarding GPAT and NIPER, they actually contact with them through WhatsApp. Okay, they will add you on their paid batch. Okay, and you will get to know all the detail and you will get everything, and you can join their live classes on Google Meet platform. Okay, so if you are interested, then you can contact with them. Then coming to another important announcement, if you are a GPAT 2027 aspirant, you can also join their paid batch. If you want to join, then WhatsApp at this number. Okay, so I am starting today's discussion. Okay, so first thing regarding GPAT, you have to know the exam. Okay, what is the exam pattern, from where the questions are coming. Okay, what are the official notices and official declarations, you have to know everything. Okay, see, regarding syllabus, these screenshots I have taken from the information brochure of 2025 GPAT. Okay, so these screenshots are authentic. In case of syllabus, they have written that BPharm का जो syllabus है on that particular topic, they will ask you the questions. Okay, and there are total 5 pillars. Okay, total 5 pillars like pharmaceutical chemistry and allied subjects, pharmaceutics and allied subjects, pharmacognosy and allied subjects, pharmacology and allied subjects, other subjects from the BPharm course curriculum. So total 5 pillars are there. 38 questions will be asked from pharmaceutical chemistry and allied subjects. Allied subject means medicinal chemistry. Allied subjects means physical chemistry. Okay, so total 38 questions will be asked from pharmaceutical chemistry, 38 questions will be asked from pharmaceutics and allied subjects, pharmacognosy and allied subjects, total 10 questions will be asked, pharmacology 28 questions, एंड अदर सब्जेक्ट्स रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स आपका है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, वहां से टोटल 11 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द examiner. Okay, so this is the exam pattern. Okay, and know the marking scheme. Marking scheme means, I hope all of you know that for each correct response you will get 4 marks, and incorrect response 1 marks will be deducted. That means 1/4 or 25% marks will be deducted if you give wrong answer for any particular question. Okay, and in case of unattempted questions you will get 0. Okay, so this is a very basic informations. सो कमिंग टू एग्जाम स्कीम. एग्जाम स्कीम क्या होता है, देखो ये पहले नहीं होता था. ठीक है, जीपैट का मान लो टोटल 125 क्वेश्चंस है. ठीक है, वहां पे 125 क्वेश्चंस है. एग्जामिनर विल डिवाइड दिस क्वेश्चंस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सेक्शंस, लाइक टोटल 5 सेक्शंस में बी देयर, ए बी सी डी ई. ओके, एंड दिस सेक्शंस आर टाइम बाउंड सेक्शंस. मान लो ए के लिए जो स्पेसिफिक टाइम है, if that is finished, then you cannot see the questions in section A. You have to jump into the section B automatically. There are no other option. And in case of if you have finished B, then automatically the system will lead to you section C. Okay, so this is very important. You have to know these kind of informations. Okay, so the question paper for GPAT will be divided into multiple time bound sections. For example, if there are 5 time bound sections, section A, section B, section D, section E, in the question paper each questions will have 25 questions and 36 minutes of the time will be allotted for the particular section. देखो ये एक्चुअल सिनेरियो में 5 सेक्शन भी हो सकता है, 6 सेक्शन भी हो सकता है और 4 सेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, बट time bound sections will be there. You have to finish the questions in that particular section within the particular time. This is the very important information regarding the examination. Okay,
सो कमिंग टू द स्टडी अप्रोच, मान लो इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, ओके, ये अगस्त है, ठीक है, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर जीपैट 2026, ये जो कैसा आपको स्टडी अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट। देखो जीपैट 2026 आपका अगस्त से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब दिसंबर जो है ना, दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू फिनिश्ड द एंटायर सिलेबस विथ इन दिसंबर 2025। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, प्लस मॉक लगाना है, आपको मॉक टेस्ट, प्लस जो कुछ, मतलब आई होप यू विल फिनिश द एंटायर सिलेबस विथ इन दिसंबर 2025, बट आई नो देयर विल बी सम टॉपिक्स वो कवर नहीं होगा, आपको वो जो सब्जेक्ट है उनको कवर करना है विथ इन जनवरी टू फेब्रुवरी, ठीक है। मतलब आपका टारगेट रहेगा दिसंबर 2025 के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, जो बचा कुचा रहेगा उनको जनवरी और फरवरी के अंदर अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, और कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको स्टडी अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट resources and optimize them. What are the resources? Resources means books, resources means study materials, okay. You have to collect all the textbooks, all the study materials what are needed for this particular examination. You have to collect all these things, then आपको complete करना है आपको syllabus. Syllabus मतलब जो पूरा बीफार्म का syllabus है, ठीक है, जो 5 मेन पिलर है, लाइक फार्माकोलॉजी, ओके, देन फार्मास्यूटिक्स, ओके, तो फार्माकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ना, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। विद इन दिसंबर योर सिलेबस एटलीस्ट 70% ऑफ सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दैट मतलब उसके साथ साथ भी आप कर सकते हैं। मान लो आप अगस्त से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, आपको स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस होता है क्या, देखो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? इट्स अ एनालिसिस टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है एंड थ्रेट है, ये जो तीनों है ना, इनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप केमिस्ट्री में आप वीक है, ठीक है, यू आर वीक इन केमिस्ट्री, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन केमिस्ट्री एवरी डे, यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री एवरी डे। उसके साथ साथ आपको आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, मान लो आपका फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको भी स्टडी करना है ऑल्टरनेटिव डे के साथ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्रेड्स, ओके। व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, यू हैव टू लुक इनटू द एवरी मैटर। थ्रेड्स मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ये हो सकता है आपका थ्रेट, और कोई फ्रेंड जो आप बहुत नेगेटिव है वो भी थ्रेट हो सकता है, उसको इग्नोर करें कुछ दिन के लिए, ज्यादा इग्नोर करें तो अच्छा रहेगा, इंटरनेट से ज्यादा दूर रहेगा तो अच्छा होगा। ज्यादा दूर मतलब जो इंस्टाग्राम में रील्स लोग देखते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, आपका वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों के साथ आपको चलना होगा, ठीक है। देन कमिंग टू द बुक्स, देखो ये जो टेक्स्ट बुक्स का लिस्ट यहाँ पे है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव दिस टेक्स्ट बुक्स, ओके। ओनली स्टडी मटेरियल कैन नॉट गिव यू अ गुड रैंक, टेक्स्ट बुक प्लस स्टडी मटेरियल कैन गिव यू अ गुड रैंक, ओके।
इन केस ऑफ फिजिकल फार्मेसी यू कैन स्टडी द सीवीएस सुब्रमण्यम का जो टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, ये आप स्टडी कर सकते हैं। इन केस ऑफ फार्मा टेक्नोलॉजी लिवरमैन लैजमैन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं। और रेफरेंस के लिए ऑल्टोन पढ़ सकते हैं, रेमिंगटन पढ़ सकते हैं, ठीक है। फार्म इंजीनियरिंग के लिए सुब्रमण्यम का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये जो दोनों बुक है यहाँ पे कुचेकर सर और कोकाटे सर, दोनों का कोई भी एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी, एनी बुक डिस्पेंसिंग रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग फार्मेसी। बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या होगा, बायोफार्मास्यूटिक्स के जो ब्रह्मंकर सर का जो बुक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी, ऑल ऑफ यू नो दैट जो फार्माकोलॉजी का जो गीता है हमारे पास, वो है मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय के डी त्रिपाठी। यू मस्ट हैव दिस बुक्स, ओके। पीडीएफ नहीं भाई, आपके पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू कैन अफोर्ड, then you can also buy a review of pharmacology by Spars Gupta. This is also a very good book, okay. So coming to the pharmaceutical chemistry books, in case of farm analysis, देखो वहाँ पे जो pharmaceutical chemistry and allied subjects जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, farm analysis pharmaceutical chemistry के अंदर ही आता है, ठीक है। So farm analysis में क्या होता है, farm analysis में रविशंकर सर का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। वाई आर शर्मा का जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वाई आर शर्मा का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कस्तूरे वाडेकर सर का भी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट देखो रविशंकर से स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस टाइट्रेशन प्लस क्रोमेटोग्राफी ये हो जाएगा, बट टाइट्रेशन का कुछ पोर्शन रविशंकर का बुक में नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू दैट कस्तूरे वाडेकर ये आपको पढ़नी चाहिए। कुछ टॉपिक है जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, जो कुछ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, कुछ टॉपिक है जो रविशंकर सर का बुक में नहीं है, इसलिए आपको कस्तूरे वाडेकर बुक भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू कैन टेक इट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑल्सो, ओके। सो वाई आर शर्मा सर का जो बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये जो तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये वाई आर शर्मा का बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये वाई आर शर्मा से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्प्लेइंग हियर द डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, ओके। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बायोट का बुक है वो पढ़ सकते हैं, अरुण भाल सर का बुक है वो पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेडकेम के लिए देखो, मेडकेम के लिए बहुत सारे बुक हैं, बट अलगर समी सर का बुक है, ठीक है। इट इज क्वाइट ऑफनली यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। सीरम जोगेश्वरी का बुक है, आई विल सजेस्ट यू कि अलगर समी का बुक ले लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी, इन केस ऑफ फार्माकोग्नोसी नो अदर ऑप्शंस, यू हैव टू बाई कोकाटे, ओके। CK कोकाटे सर का बुक है, ये बहुत अच्छा है, इनको आपको रखनी चाहिए पास में, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अदर टॉपिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में आपको सत्यनारायण सर का बुक आता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण सर का भी बुक आता है। माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी बुक ले लीजिए। बट ये जो अदर बुक्स है ना, इसको टेक्स्ट बुक आपके पास है नहीं है कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, बट ये वाला जो बुक है, मतलब कोकाटे वाला जो बुक है, ये आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक। एंड KD त्रिपाठी, ये भी टेक्स्ट बुक रहना चाहिए आपके पास, हार्ड कॉपी, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिवरमैन लैचमैन हार्ड कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये भी हार्ड कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का जो बुक है वो भी हार्ड कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। फार्म इंजीनियरिंग का बुक वो भी हार्ड कॉपी रहना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, ओके। एंड जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह है ना, वो टेक्स्ट बुक से ही बना हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सो कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कि ये टेक्स्ट बुक सर तो है आपके पास, स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है। देखो स्टडी मटेरियल के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपको रहेगा जो GPAT अ कंपेनियन, मतलब इनामदार सर का जो बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन है यहाँ पे, दिस इज अ मस्ट हैव बुक, ठीक है। If you can afford, then this will be your first option for practicing your PYQs or MCQs, okay? उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पियर्सन का जो बुक है वो भी खरीद सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि दैट जो मार्केट में जो और भी दूसरा कंपनी है जहाँ से मतलब स्टडी मटेरियल अच्छा आ रहा है, ठीक है। मान लो GDC का जो स्टडी मटेरियल है, GDC का जो नेविगेटर सीरीज है, देखो GDC मेरे को कोई मतलब GDC से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो अच्छा बुक है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो GDC का जो नेविगेटर सीरीज है और फिंगर टिप्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं।
दे आर वेरी गुड बुक, ठीक है। तो पियर्सन आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। जीडीसी का जो बुक, जो स्टडी मटेरियल है, नेविगेटर सीरीज है और जो फिंगर टिप्स है, वो आप खरीद सकते हैं। इन दोनों में मतलब एनी वन ऑफ देम, पियर्सन और जो नेविगेटर सीरीज, एनी वन ऑफ देम यू कैन बाई, बट यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ इनामदार सर का जो बुक है ये आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, सो देखो यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपका कुछ मतलब ये जो साइकिल है ना ये आपको रिपीट करना है। क्या? फर्स्ट आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी मतलब मान लो यू आर स्टडिंग हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक। आप केडी त्रिपाठी से पढ़ रहे हो, बिकॉज केडी त्रिपाठी इज द टेक्स्ट बुक फॉर फार्माकोलॉजी। यू आर स्टडिंग फ्रॉम केडी त्रिपाठी। पहले आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। कहाँ से प्रैक्टिस करना है? बहुत सारे बुक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जीडीसी का जो ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप्स है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप्स वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट और भी बहुत सारे बुक्स है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ड्यूरिंग द प्रैक्टिसिंग ऑफ एमसीक्यू, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल गेट टू नो दैट देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस यू हैव मिस्ड while you are studying the theory, while you are studying the theory book. Okay, you have to identify those particular informations. Okay, you have to see the explanation of that particular MCQs and you have to go back the theory book. I mean केडी त्रिपाठी का जो बुक है वहां पे हिस्टामाइन चैप्टर में आपको फिर से जाना होगा, देखना होगा कहां से वो क्वेश्चन आया था and why you did not answer the question. आपको देखना होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा थ्योरी को फिर से। जो हिस्टामाइन और एंटी हिस्टामाइन चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करना होगा केडी त्रिपाठी का बुक से, ठीक है। एंड कंसोलिडेट योर नोट्स। कंसोलिडेट योर नोट्स मीन देखो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकता है आपका टेक्स्ट बुक में लिखा ना रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो एमसीक्यू बुक से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, जो रेफरेंस बुक से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको आपको टेक्स्ट बुक का उसी चैप्टर में आपको राइट डाउन करना है। मान लो ये जो पेज है यहाँ से हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामिनिक चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। मान लो एक इंफॉर्मेशन है जो केडी त्रिपाठी सर का बुक में नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेंसिल से राइट करना है, जो ब्लैंक स्पेसेस है ना पेज में वहां पे आपको स्टार मार्किंग करके राइट करना है, ठीक है। दूसरा बार आप जो रिवाइज करेंगे तो ये जो पूरा पॉइंट आपके सामने रहेगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 2 to 3 चैप्टर्स यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑटोकैड जो मतलब जो यूनिट है वहां पे बहुत सारे चैप्टर है। हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामिनिक एक चैप्टर है, उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन है, एनएसएआइड्स है, ठीक है, उसके साथ साथ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा एंड मॉक टेस्ट देने के बाद उसका पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको करना होगा, प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको करना होगा, ठीक है। विदाउट इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स there is no need to give any kind of mock test. You have to understand where the questions are coming and why you could not attempt the questions. Okay, so you have to repeat these cycles again and again. You have to repeat this cycle again and again. उसके साथ साथ आपको तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इनामदार सर का जो बुक है वहां से करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आपका स्ट्रेंथ मजबूत होगा, आपका जो मतलब जो पिलर है, स्ट्रेंथ जो है ना आपका, वो होगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर नाइपर जेई, ओके, नाइपर जेई जो टारगेट कर रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू अ इम्पोर्टेंट सजेशन कि आप नॉन फार्मा वाला जो पोर्शन है ना, नॉन फार्मा वाला जो पोर्शन है ना
वो भी साथ साथ कर सकते हैं। नॉन फार्मा में कुछ टॉपिक है जो बहुत इजी है, लाइक ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन ये बहुत आसान सा चैप्टर है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। सीरीज, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देन सिंप्लीफिकेशन, ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत वेन डायग्राम, ओके, वेन डायग्राम, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि एक नाइपर का एग्जाम आ रहा है, मान लो नाइपर का एग्जाम आ रहा है, चिपेट के बाद नाइपर का एग्जाम आ रहा है, आपके पास एक वीक और 2 वीक बचा हुआ है, एंड यू आर जंपिंग इनटू द टॉपिक्स ऑन द नॉन फार्मा, कुछ नहीं होगा। साल भर आपको तैयारी करना है। ये जो टॉपिक्स है ना, ब्लड रिलेशन, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये आपको साथ साथ करना चाहिए। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, वेन डायग्राम भी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूट्यूब में भर भर के कंटेंट है, आप देख सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं आपका कॉपी में, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आसान से हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो न्यूज़ चल रहा है ना, जो न्यूज़ चल रहा है अभी, जो टॉपिक न्यूज़ में है, इसरो का जो मिशन न्यूज़ में है, और जो नासा का जो मिशन न्यूज़ में है, ठीक है, डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है नाइपर में, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो रिसोर्स आपको कैसे कंसोलिडेट करना है, नोट्स आपको कैसे बनाना है, ठीक है। देखो, नोट्स आपको कैसे बनाना है, नोट्स मैंने आपको बोला था कि मान लो टैबलेट, यू आर स्टडिंग टैबलेट, टैबलेट एक चैप्टर है इन फार्मास्यूटिक्स, एंड आपके पास पहले तो आप कहाँ से पढ़ा है, अब लीबरमैन लैचमैन से आप टैबलेट पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग लीबरमैन एंड लैचमैन, यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, एंड वहाँ पे देख रहा है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मतलब दोस क्वेश्चंस यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, ओके। सो आप क्या किया, जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से भी टैबलेट पढ़ा, और आपका जो और भी एक रेफरेंस बुक है ऑल्टोन, वहाँ से भी मान लो आपने टैबलेट पढ़ा, ठीक है। ये जो तीनों को ना एक साथ, जो आपका टेक्स्ट बुक है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन न्यू है वहाँ पे आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। मान लो आप स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पियर्सन का बुक से ही पढ़ रहे हैं, पियर्सन का बुक में जो टैबलेट जहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप लीबरमैन लैचमैन से जो सारा इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ऑल्टन का जो बुक है वहाँ से भी जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहा है, तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो पेंसिल में लिख लीजिए, ठीक है, पूरा एक पेज में हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल रिवाइज द एंटायर थिंग, पूरा का पूरा जो नोट्स है वो आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर GPAT 2026. Okay, so this is the end of our video. Hope all of you like the video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.